आपको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है एंड आई नीड टू बी बेटर प्रिपेयर टू हैंडल दिस काइंड ऑफ पेपर इन फिजिक्स, तो आपने मुंह पे पानी डाला और क्या किया बिफोर यू स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द पेपर अगेन? I took very deep breath and I calmed myself down because I actually used to do meditation for the last 5 months to keep myself in a very calm position, mentally free. So I used some of those techniques so that I could just thoda calm myself down. And I went back running and I drank a sip of water and I again started with physics. तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि सोमजी जी की बेटी है और अब ये जारा के अब्बू है, ऐसा कुछ हुआ है या ये Yeah, डिफरेंस मतलब है? obviously many like even in like many places my community and everywhere I do get like there's some changes like I'm quite known and like my parents की एक अलग पहचान है. So yeah, it's like both works, but yeah, I've seen this new change जो कभी था नहीं. Master class is known for its fat questions, so like lambe assertion reason statement type. So I obviously used it towards when I completed my syllabus so that I could again perfect my biology NCRT not through reading it but through question solving. And then I would also get a taste of those fat questions, how to attempt it. गलत तो बहुत होते थे but धीरे धीरे accuracy improved and I started feeling better and more confident in it. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ जारा सोमजी हैं। जारा सोमजी बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर हैं। इनका स्कोर है 625, इनकी रैंक है 351। ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये पुणे कोंडवा से हैं, यदि आप कोंडवा को जानते हैं तो हम लोग जारा सोमजी से उनकी जर्नी समझने की कोशिश करेंगे। जारा, सबसे पहले ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? To be honest, like I am quite happy, like after all those struggles and after all those itni mehnat karke I finally reached such a place, and like NEET is finally over and starting a new journey is gonna be exciting. आपके फादर का पूरा नाम क्या है? Muhammad Ali Somji. ठीक है। तो ये बताए ना, सच में मैं स्टूडेंट्स को बहुत बोलता हूँ, जैसे मेरा जब आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था तो उससे पहले मेरी पहचान थी गुप्ता जी का बेटा। और आईआईटी में सिलेक्शन के बाद सब लोग मेरे पापा को उस टाइम से अब तक जानते हैं कि ये कपिल के पापा हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि सोमजी जी की बेटी है और अब ये जारा के अब्बू हैं, ऐसा कुछ हुआ है या ये Yeah, डिफरेंस मतलब है? obviously many like even in like many places my community and everywhere I do get like there's some changes like I'm quite known and like my parents की एक अलग पहचान है. So yeah, it's like both works, but yeah, I've seen this new change जो कभी था नहीं. या एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। Yeah. दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, गुड। आपने एलन पुणे से तैयारी की, उसके अलावा आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी की बुक्स ली। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑब्वियसली एलन के अंदर अच्छी तरह तैयारी कराई जाती है, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग भी होता है, तो आपने टारगेट बैच और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्यों ज्वाइन किया? I joined target batch in 11th standard. So that time my main focus was I wanted more questions to solve, particularly in biology. Because I felt like NCRT बार बार पढ़ने से was obviously important, but I wanted कि मेरा ऐसा था कि I got more confidence while solving questions. Like I felt like that chapter is more perfect. Like मुझे उतना confidence आता था कि I should solve questions and it would be great. So I that's why mostly particularly for biology I purchased cardiac batch, and sometimes in a while I used to use those DPP generators tests. And I for physics and chemistry, but mostly focus was of biology. Ki most of the questions are from that subject. तो जारा ने हमारे यहाँ से करीब 15,000 क्वेश्चन सॉल्व किए। ऑब्वियसली शी वाज आल्सो सॉल्विंग क्वेश्चंस एट एलन। और आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी थोड़ा एंड की तरफ ज्वाइन किया, तो उसके क्वेश्चन कैसे लगे? मतलब गलत होते थे आपके क्वेश्चन या सारे सही हो जाते थे? नहीं, सारे सही तो नहीं है because obviously master class is known for its fat questions. So like lambe assertion reason statement types. So I obviously used it towards when I completed my syllabus so that I could again perfect my biology NCRT not through reading it but through question solving. And then I would also get a taste of those fat questions, how to attempt it. गलत तो बहुत होते थे but धीरे धीरे accuracy improved and I started feeling better and more confident in it. तो मजा आया आपको डॉक्टर शर्मा? वो वाले क्वेश्चन कहीं पे होते भी नहीं है, मतलब दे आर, बिकॉज दे आर ओरिजिनल क्वेश्चन इधर उधर बुक्स में, क्योंकि काफी जगहों पे तो क्वेश्चंस में क्या होता है, काफी जगह पे सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको
इस चीज का फियर नहीं था कि मैं कंप्लीटली नए क्वेश्चन कर रही हूँ, तो थोड़ा एग्जाम के पास में आपने दिसंबर जनवरी में एग्जाम से 5-6 महीने पहले बायोलॉजी के लिए मास्टर क्लास इन बायोलॉजी सॉल्व करना चालू किया, तो फियर नहीं था कि मैं एक कंप्लीटली नया सोर्स क्यों यूज कर रही हूँ? नहीं, बिकॉज आई बिलीव कि जितने नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेटर है, rather than doing the same question multiple times. So I was like very keen on experimenting, and I had that time I had no source of biology कि क्या करूं मैं, because physics chemistry was डन बाय रिविजन चाहिए थी थोड़ी बहुत, जो वीक टॉपिक्स थे, एंड आई कुड सॉल्व क्वेश्चंस थ्रू टेस्ट। लेकिन बायोलॉजी आई वांटेड कि मुझे एनसीईआरटी बार बार नहीं पढ़नी थी, दैट वाज गिविंग मी सम फियर कि ज्यादा भूल रही हूँ। सो आई वाज टू मेक मी कॉन्फिडेंट, आई सॉ कि जब रिजल्ट आता है कि सही आ जा रहे क्वेश्चंस, सो यू विल गेट कॉन्फिडेंस, सो दैट वाज अ बेटर वे। और ऑडियो एक्सप्लेनेशन से अच्छी तरह, शर्मा सर तो ऑडियो एक्सप्लेनेशन में हर एक्सप्लेनेशन में एक पूरा एक कॉन्सेप्ट ही समझा देते हैं साथ में, राइट? या या तो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रही है जारा, जो आपको समझनी चाहिए। आप लोग यूट्यूब पे इस बात का हल्ला सुनेंगे कि नीट का पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है, तो बार 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 बार, और फिर कुछ लोग बोलेंगे 25 बार पढ़ लो एनसीईआरटी, 30 बार पढ़ लो। वी हैव डिस्कस दिस ऑन दिस चैनल, हमें नहीं लगता वो इफेक्टिव है। इट कैन बिकम वेरी बोरिंग। और एग्जैक्टली जो जारा बोल रही है, जब तक टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू टेस्ट योर एनसीईआरटी अगेंस्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपको हमेशा ये फियर बना रहेगा कि मैं पढ़ रही हूँ और पता नहीं पीछे का भूली हूँ नहीं भूल रही हूँ। पर यदि आप क्वेश्चन करते हैं तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज ये बताइए, आपका स्कोर है 625। ब्रेकअप क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? फिजिक्स इज 129, केमिस्ट्री इज 165, एंड बायो इज 331। तो चलो, हमने कैलकुलेशन की थी इस वाले इंटरव्यू से पहले, तो उसका मतलब है फिजिक्स में आपके 7 गलत हुए और आपने 4 छोड़े, ये आपने मुझे बताया था। केमिस्ट्री में आपके 3 गलत हुए, और बायो शी गॉट 5 रॉन्ग एंड शी लेफ्ट 1। तो अब एक बार है ना उस वाली जर्नी को देख लेते हैं, वो जो 3 आवर्स एग्जाम के बाहर आके आप रो रही थी कि हे भगवान ये क्या हो गया। या मतलब इट वाज काफी स्ट्रेसफुल, एंड लाइक ये आई नथिंग एक्सपेक्टेड, सो लाइक या अ सरप्राइज इंडीड। या तो आपको पता है पिछले 4 साल से क्या हो रहा था? लोग पेपर देने जाते थे और वो बाहर बहुत खुश आते थे, उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा पेपर आता था, क्योंकि पेपर वॉज गेटिंग सिंपलर एंड सिंपलर। 21, 22, 23, 24। तो वो एग्जाम के बाद बड़े खुश होते थे और रिजल्ट के दिन बड़े दुखी होते थे, क्योंकि रैंक बहुत खराब आती थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, है ना? इस बार एग्जाम के बाद लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, और रिजल्ट के दिन तो ओहो, व्हाट वाज द रैंक यू वर एक्सपेक्टिंग? आपकी रैंक आई है 351। दैट्स क्वाइट अ क्रेजी रैंक, राइट? या तो आप एग्जाम जिस दिन देके आई, याद करिए जब आप बाहर निकली तो उस समय पे आप क्या रैंक सोची थी? आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में होगा भी या नहीं होगा? लाइक धीरे धीरे वो अब्सॉर्ब हो रहे, जैसे ही बाहर आई सब बोल रहे थे कि पेपर गंदा गया, लाइक हाँ था टू बी। तो आई वाज लाइक कि आई हैव डन माय बेस्ट। लास्ट तक ऐसा था कि इतने क्वेश्चन में बस थोड़े सही चले जाए जो मेरे डाउटफुल क्वेश्चन थे, तो आई वुड माइट बी एबल टू गेट अ गुड रैंक। सो धीरे धीरे वो कम होते गया, जैसे आई टॉक टू माय टीचर्स, आई गॉट टू नो एवरीवन्स ओपिनियन, सो धीरे धीरे वो फियर कम होते गया, एंड आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग लाइक टॉप 1000 रैंक और समथिंग। गुड। तो अब एक एक करके चलते हैं। आपका सीक्वेंस क्या होता था पेपर अटेम्प्ट करते समय? I used to start with biology, then chemistry, and then physics. ठीक है। तो बायो का पेपर आपने कितने टाइम में खत्म किया नी 2025 में? Around 40 to 45 minutes. इसमें आपने ओएमआर नहीं भरी, राइट? No, ठीक है। कितने क्वेश्चन छूट गए थे इसमें? around 7 to 10. तो आप इस बात की प्रैक्टिस करती थी अपने टेस्ट के अंदर कि यदि क्वेश्चन नहीं हो रहा तो यू लीव इट, आप उस पर कुछ सर्कल वगैरह मार्क कर लेगी, जिससे यू कैन कम बैक एंड अटेम्प्ट देम अगेन? Yeah, yes. ठीक है, आपने 45 मिनट में कर लिया। उसके बाद केमिस्ट्री में कितना टाइम लगा? Chemistry में around 35 to 40 minutes. ठीक है। कितने क्वेश्चन उसमें छूट गए केमिस्ट्री में? Around 5. ठीक है। अब आप फिजिक्स में आई, फिर क्या हुआ? आपने मुझे बताया आपने, आपका कोड 45 था, तो पहला वाला क्वेश्चन सरफेस टेंशन वाला था। Yes.
ठीक है, So yeah, कितना obviously उसी याद वक्त है? इतना लंबा क्वेश्चन देख के पैनिक थोड़ा हुआ. Then I skipped that because I had a like a strategy कि I have to leave the hard questions. Just जो पहले easy formula based दिख रहा है उस पे जाओ. Second was a microscope question, so I was not so like confident with microscope. मुझे टाइम लगता था तो मैंने उसको भी छोड़ा. धीरे धीरे क्वेश्चन ज्यादा छूटने लगे ना कि सॉल्व हो रहे थे. So then I went into तो a मुझे very बताओ, serious एक सेकंड रुक panic. जाइए। हाँ, तो 1 मिनट रुक जाइए। 45 और 40 मिनट्स, 85 मिनट्स आउट ऑफ 180 मिनट्स हो गए जब आपने फिजिक्स चालू किया। ये जो पहले 3-4 क्वेश्चन नहीं हुए उसमें कितना टाइम चला गया आपका? अराउंड टेन मतलब मिनट्स अराउंड 5 to 10 minutes हो सकता है. तो फिर आपने मुझे बताया यू रश टू द बाथरूम टू स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस। यस. ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, वॉशरूम में जाके वापस आने में कितना टाइम लगा? मतलब आई थिंक सो 5 to 10 minutes में ये सब हुआ लाइक तो दिस होता क्या है, पैनिक. एकदम निकल के दौड़ते हैं कि क्योंकि क्लॉक। I even got like stopped by one of those invigilators कि you should calm down, you might get hurt while running. I was very fast because I knew कि it's a very lengthy paper, I don't have time to lose, but I had to calm down myself. That was more important. वरना पूरा paper could have been worse. तो आप गई, आपने स्प्लैश किया, और क्या किया आपने अपने आप को काम डाउन करने के लिए? क्लियरली आपको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है एंड आई नीड टू बी बेटर प्रिपेयर टू हैंडल दिस काइंड ऑफ पेपर इन फिजिक्स, तो आपने मुंह पे पानी डाला और क्या किया बिफोर यू स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द पेपर अगेन? I took very deep breaths and I calmed myself down because I actually used to do meditation for the last 5 months to keep myself in a very calm position, mentally free. So I used some of those techniques so that I could just thoda calm myself down. And I went back running and I drank a sip of water and I again started with physics. तो वो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और फिर आपने ये जो ब्रेक टाइप लिया, टोटल मिला के कम से कम 12-13 मिनट चले गए, राइट? 15 मिनट्स। Yeah. आने जाने में टाइम तो लगता ही है, राइट? ठीक है, 15 मिनट चले गए, तो आपका फर्स्ट राउंड फिजिक्स का कितने टाइम में खत्म हुआ और कितने क्वेश्चन रह गए? Around कुछ 15 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे. बाकी सब 15 to around 20 के बीच में थे. एंड सम वर लाइक जिसमें दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, हाफ सॉल्व्ड है ऐसा था. देन इट वाज लाइक आई रियलाइज कि टाइम इज अप एंड लाइक मतलब काफी देर हो चुकी है. सो आई अगेन वेंट बैक टू. तो 1 मिनट रुक जाइए, जब आप बायो पे वापस गई उससे पहले फिजिक्स में आपके 20 क्वेश्चन छूट गए, बायो में आपके करीब 7 to 10 क्वेश्चन, यू डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, केमिस्ट्री में 6। तो टोटल करीब आपके 35 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और कितना टाइम बचा हुआ? अराउंड एन आवर, यू वर सेइंग 1 घंटे के आसपास बचा हुआ, और पूरी ओएमआर भरनी है, तो 1 घंटे में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है पेपर के वो अटेम्प्ट करने हैं 35, और आपको ओएमआर भरना है, करेक्ट? या ठीक अराउंड है, 30 क्वेश्चन इन फिजिक्स एंड बाकी सब जो है प्लस ओएमआर. तो अब आप वापस आई बायो में, आपने कितना रिड्यूस कर दिया उसे? बायो में 2 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस एंड उसके बाद देन ओएमआर कर दी इन 10 minutes. तो आप कितना टाइम बचा है अब? Around 40 minutes I have. ठीक है, फिर आपने फिजिक्स के वो 30 क्वेश्चन 40 मिनट से So ठीक। yeah, that time it was like mostly I found कि all of my questions, not all, but बहुत सारे questions थे जो half solved थे. Cause then I panic at that. I don't know how to go ahead. So when I बाकी जब होता लगा कि आधा पेपर हो चुका है, now I just have to like try my best and just complete it. तो अब थोड़े questions normal speed में होने लगे, like calculations होने लगे, so I could get the answers. So that was this. So that would have been probably, those would have been the worst 40 minutes of your life till now, right? Yeah, those were stressful. या जब आप ऑपरेशन थिएटर में होंगी या कोई इमरजेंसी के अंदर ट्रॉमा सेंटर में आएगा, तब आपको लगेगा कि चलो उससे भी खतरनाक चीजें होती है, बट दैट इज व्हाट द एग्जाम इज प्रिपेयरिंग यू फॉर। फैंटास्टिक चीज। मुझे एक फाइनल चीज बता दीजिए जारा, हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर। क्या आपने 2 साल में वॉज देयर अ सिंगल डे जिस दिन आपने कहा कि आज तो मैं नहीं पढ़ूंगी? यस, मतलब आज नहीं पढ़ूंगी. इट वाज लाइक नॉट कि नहीं पढ़ना है इसके नहीं पढ़ूंगा. आई थॉट कि मेरे लाइक इतनी जर्नी में दे शुड बी इम्पोर्टेंट टू टेक ब्रेक्स. So I have taken like a day off or like 2 to 3 days off, like
not together, but in a separate places. But that was willingly, not because of my laziness or like because I was feeling down. It was just to revive myself so that I can get better. And someone कितनी बार even किया ऐसा? post, 2 साल में कितनी बार किया ऐसा? very rarely, like around once एक बार तो I was forced by my sir. That's why I had taken it, because there was like literally a mental breakdown, and that time I took, and फिर ऐसे like 2-3 बार ही हुआ होगा. ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, जो इतनी सारी इन्होंने स्टोरी बताई, 1 दिन 2 दिन, ये इन्होंने 2-3 बार किया, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए, यू वर नॉट ऑन मोबाइल एट ऑल, राइट? सोशल मीडिया वगैरह का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं? No. तो आप कौन से कॉलेज जा रही हैं? ज़ारा, व्हाट इज़ योर प्लान? आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है अभी? AIIMS Bhopal. एंड दैट इज द कॉलेज यू आर गोइंग टू चूज, और यू आर गोइंग टू ट्राई एंड चूज सम अदर कॉलेज? I have upgraded for round 2. Let's see. ओके। और मोस्ट ऑफली आपने अपग्रेड के अंदर एम्स दिल्ली डाला, राइट? और कहीं पे नहीं Yeah, जाएंगे? AIIMS Delhi and Delhi के colleges डालिए. Let's see. ओके। तो यदि आपको मौलाना आजाद या सफदरजंग मिलता है तो यू विल गो देयर कंपेयर टू एम्स भोपाल, दैट्स अ प्लान। Yes. ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने ज़ारा सोमजी हैं फ्रॉम पुणे। फैंटास्टिक स्टोरी। एक बार वापस वाला पार्ट जाके देख लीजिएगा जहाँ पे हम लोगों ने, एंड वी हैव डन दिस विद एवरीवन whom we have interviewed on this channel, जो नीट 2025 के टॉपर्स हैं। शी हैज़ अ रैंक ऑफ 351, स्कोर ऑफ 625। हमने सारे स्टूडेंट से पूछा है कि आपका एग्जाम के अंदर क्या रहा, बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है डिफिकल्ट पेपर के लिए आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ रेडी होके जा सकते हैं, या फिर आप ये सोच के जा सकते हैं कि डिफिकल्ट सबके लिए होगा। इफ आई एम एबल टू इंटेलिजेंटली फाइंड माई वे अराउंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन। जारा का इतना अच्छा रैंक है, उसके बावजूद फिजिक्स में उनके 7 गलत हुए और उन्होंने 4 छोड़े। केमिस्ट्री में उनके 3 गलत हुए। बायो शी गॉट 5 रॉन्ग एंड शी लेफ्ट 1 डिस्पाइट ऑल द एफर्ट। और इतने गलत होने के बाद भी इनका रैंक 351 है। तो बिकॉज जारा यूज्ड हर टाइम वेरी एफिशिएंटली in a difficult paper. Thank you so much, Zara. It was a wonderful talking to you. Yes, same here. I really enjoyed coming here and like sharing my thoughts. I wish all the future aspirants all the very best for your journey. Perfect. Students, आपको सारा से जबरदस्त विशेष भी मिल सके हैं। Thank you, Zara. Thank you.